فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا دورہ ایران، صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا نے بتایا ملاقات میں ایرانی صدر نے کہا کہ امریکہ کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا، امریکہ اسلام آباد معاہدے پر عمل کرے۔ اس سے قبل فیلڈ مارشل سے اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف نے ملاقات کی۔ باقر کالباف نے کہا امریکہ کی بدنیتی نے امن کی راہ میں رکاوٹ ڈالی، ایران معاہدے کے تحت وعدوں پر عمل درآمد کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ فیلڈ مارشل سے سربراہ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی میجر جنرل محسن رضائی نے بھی ملاقات کی۔ محسن رضائی نے کہا امریکہ پر اعتماد نہیں، امریکہ اپنے وعدوں پر عمل کرے۔ فیلڈ مارشل اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے بھی ملاقات کی۔ پاکستانی وفد نے ایرانی وزیر داخلہ سے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا، دو طرفہ تعلقات اور سرحدوں کی سیکیورٹی پر گفتگو ہوئی، خطے میں امن، استحکام اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران کا ایک روزہ دورہ مکمل۔ ISPR کا بتانا ہے کہ یہ دورہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کے تحت امریکہ ایران تنازع میں تعطل کے خاتمے کے لیے کیا گیا ہے۔ دورے کا مقصد پائیدار امن اور خطے میں عدم استحکام کے مستقل خاتمے پر غور کرنا تھا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی ایرانی سپریم لیڈر کے نمائندے محسن رضائی سے بھی ملاقات ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف سے بھی ملاقات ہوئی۔ امریکہ کا ایران کے خلاف آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ شروع۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے بتایا ایران پر عائد کی جانے والی نئی پابندیاں ایرانی تاریخ کی سخت ترین پابندیاں ہوں گی۔ اب ایران کے لیے ہر مالیاتی لائف لائن کو مستقل طور پر بند کیا جائے گا۔ اسکاٹ بیسنٹ کے مطابق ایران کو معاشی سہارا دینے والے ممالک اور عناصر کو بھی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران سے تعاون کرنے والے ممالک کو بھی امریکی گرفت کا سامنا ہوگا۔ نئی اقتصادی پابندیوں کے بعد ایرانی نظام خود گھٹنے ٹیک دے گا۔ ایران کو ترسیلات زر کی کچھ ادائیگیوں کے لیے دیے گئے لائسنس بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ کچھ روز قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف اقتصادی جنگ شروع کرنے کی دھمکی دی تھی۔ has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers. In the Second World War, D-Day marked the historic beginning of a campaign with our allies to target and drive the enemy from its positions, including those in third countries. Today, in that same spirit, we are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe. امریکی صدر کی معاشی جنگ جاری رہی تو خلیج سے تیل کے تمام برآمدات روک دیں گے، ایران کا امریکی دھمکی پر جواب۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ محسن رضائی نے کہا جو بھی ملک امریکی پابندیوں کی حمایت کرے گا ایران اسے جنگی اقدام تصور کرے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ کمیٹی نے مسودہ قانون کی منظوری بھی دی جس کے تحت آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت رکھنے والے ممالک کے جہازوں سے خدمات کی فیس وصول کی جائے گی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن جماعتوں نے جوائنٹ اپوزیشن پر اتفاق کر لیا۔ باہمی مشاورت سے تمام اقدامات انجام پائیں گے۔ متحدہ اپوزیشن کے مشترکہ اجلاس کے بعد محمود خان اجگزئی، مولانا فضل الرحمان اور چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے بات کی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا زور زبردستی سے قائم یہ حکومت عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر خان نے کہا اپوزیشن کا اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے مشترکہ لائحہ عمل اپنایا جائے گا۔ خوشی کا دن ہے، مبارکباد کا دن ہے کہ اس گھٹن کے ماحول میں زر اور زور کی بنیاد پہ قائم اس اسمبلی کی حزب اختلاف نے متحد ہو کر آئین کی بحالی کے لیے، پارلیمنٹ کو واپس طاقت کا سرچشمہ بنانے کے لیے، جمہوری پاکستان کی تشکیل نو کے لیے متفق ہو گئی۔ حزب اختلاف کی بینچوں پر بیٹھنے والے تمام لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن کا کردار ادا کیا جائے گا، مشترکہ حکمت عملی باہمی مشاورت کے ساتھ سر انجام پائیں گے۔ سب کا ایک اتفاق رائے ہے کہ ملک میں اس وقت امن و امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے۔ یہ وقت صوبوں کی تقسیم کا نہیں ہے، نہ ماحول ہے نہ اس کے لیے تیاری ہے۔ کوئی وجوہات نہیں ہے کہ ملک کے
जेलें जो हैं वो सियासी कैदियों से भरी पड़ी हों, कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। धांधली की बुनियाद पर कायम की गई हुकूमत मुल्क के अंदर अवाम की नुमाइंदा है, न मुल्क से बाहर अवाम की नुमाइंदा है। इस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि सेनेट और कौमी असम्बली में जो अपोजिशन की जमातें हैं वो अलग अलग बातें करने की बजाय यूनाइटेड अपोजिशन के बैनर के तले यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगे, चाहे वो कानून साजी हो या हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराना हो। इसी तरीके से पार्लियामेंट के बाहर ये यूनाइटेड अपोजिशन कौमी इश्यूज पे बात करेंगी और कोशिश करेगी कि हम यकसा मौक़िफ़ अपना करके आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। ऑपोजिशन इत्तेहाद पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। परवेज रशीद कहते हैं इत्तेहाद से हुकूमत को नहीं ऑपोजिशन को खतरा है। ऑपोजिशन तो तशद्दुद की सियासत करती है। मौलाना फजल रहमान जमहूरी सियासतदान हैं, कैसे इस बेलगाम घोड़े पर सवारी करेंगे? राना सना बोले पीटीआई के खमीर में ही नहीं कि वो दूसरी सियासी जमातों के साथ ताउन या मुज़ाकरात करे। अयाज सादिक ने कहा मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार है। हुकूमत को खतरा नहीं होगा, अपोजिशन को खतरा होगा। अपोजिशन जो है वो तो मार धाड़ की, तशद्दुद की, हमला करने की सियासत करती है। फजलुर रहमान साहब जो है वो एक जमहूरी सियासतदान है। इस बेलगाम घोड़े के ऊपर फजलुर रहमान साहब कैसे सवारी करेंगे? ये ज़मीर में नहीं है कि वो कोई पॉलिटिकली दूसरी सियासी जमातों के साथ ताउन करें, उनके साथ मुज़ाकरात करें और पॉलिटिकली इश्यूज को रिजॉल्व करें। तो हर चीज़ का हल जो है टेबल पर बैठ के किया जाता है, लड़की और प्रोटेस्ट से नहीं होता। जब वो बैठना चाहेंगे तो स्टेटमेंट दे देनी जी हम बैठने को तैयार हैं, वो काफ़ी नहीं होता। बलूचिस्तान में सरानान के इलाके सुलेमान जई में कराची चमन रोड की तामीर में मसरूफ मजदूरों पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। फायरिंग में 5 मजदूर शहीद और 1 जख्मी हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की भारी नफरी जाए वक़ा पर पहुंच गई। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है इस हमले के पीछे फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुलव्विस हैं जो बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को सबूताज करना चाहते हैं। रावलपिंडी में मुबैना तौर पर शौहर के हाथों कत्ल होने वाली हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मकतूला की गर्दन की हड्डी टूटी हुई, पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर जख्म के निशान पाए गए। मौत की वजह का तयन करने के लिए लाश से हासिल नमूने फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। हिना जावेद की शादी 9 माह कबल हुई थी। कत्ल का मुकदमा थाना सिविल लाइंस में मकतूला के भाई फहद जावेद की मुद्दत में दर्ज है। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून हिना जावेद की हाथ बंधी, गले में फंदा लगी लाश मिलने के केस में अहम पेशरफ्त। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद और जख्मों के निशानात साबित हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक 45 साला हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पसली और कूल्हे की हड्डी पर भी जख्मों के निशान थे। दिल के गिर्द मौजूद झिल्ली खून से भरी हुई थी। हिना जावेद का पोस्टमार्टम मौत के तकरीबन 12 घंटे बाद किया गया। इब्तदाई तौर पर मौत की हतमी वजह का तयन नहीं हो सका। लाश से DNA और दीगर नमूने हासिल करके फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। घरेलू मुलाजिम ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया। मरकजी मुलजिम डॉक्टर फैसल असगर के 78 साल के वालिद को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। डॉक्टर फैसल ने मुलाजिम को वारदात में शामिल होने के लिए लालच दिया। मुलाजिम जीशान ने मकतूला के हाथ बांधे और गला दबाया। जावेद के सफ़ाक कत्ल का अरकान असम्बली ने भी नोटिस लिया है। इजलास के दौरान लीगी एमएनए सायरा अफजल तारड़ ने मरहुमा के लिए दुआ कराई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा हिना जावेद कत्ल केस विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस मॉनिटर करेगा। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा हिना जावेद के कातिल को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। या अल्लाह हिना की जो बेदर्द मौत है उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। मारने वाले को, उस जालिम को कैफरे किरदार तक पहुँचा। पुलिस को हिना की लाश शावर से लटकी हुई मिली। ससुर ने फोन किया था कि घर में चोर घुस आए। आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज ने कहा कि खातून के कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम साइंसी बुनियाद पर तफ्तीश कर रही है। ससुर के खिलाफ कोई सबूत मिला तो गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसे बहुत से पहलू हैं जिनको बताने से तफ्तीश पर असर पड़ सकता है। 6 बजे पुलिस को इतला मिलती है कि घर में चोर दाखिल हुए हैं। पुलिस इतला हुए वहाँ पहुँचती है। वॉशरूम में मकतूला हिना जावेद की डेड बॉडी शावर के साथ लटकी हुई। तो देखने से ही अंदाजा होता है इस वाक़े को खुदकशी का रंग दिया जा रहा है। हाई प्रोफाइल केस के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में तश्कील दी है ताकि इस मुकदमे में कोई सुकम बाकी न रहे। पुलिस साइंटिफिक पहलुओं से इस मुकदमे की तफ्तीश कर रही है। मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जस्टिस उमर सियाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन बना दिया गया।
सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस उमर सियाल को कमीशन का सरबराह नामजद किया। कमीशन मीर रजा की मौत के असल हकायक और हालात का जायजा लेगा। मीर रजा के वालिद ने तहकीकात के लिए JIT बनाने का मुतालबा किया। कराची से सलमान रोधी की रिपोर्ट। रजा केस में अहम पेशरफ। महकमा दाखिला सिंध ने मकतूल नौजवान ताजिर मीर रजा केस की इंक्वायरी के लिए अदालती कमीशन के कयाम का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस उमर सियाल मीर रजा की मौत के असल हकायक और हालात का जायजा लेंगे। कमीशन मीर रजा की मौत से कबल और वाक़े के इर्द गिर्द के तमाम हालात की भी छानबीन करेगा। पुलिस अफसरान या MLOs की गफलत, फराइज से कोताही या पेशेवराना बदउनवानी की तहकीकात भी होंगी। दूसरी जानिब मीर रजा के वालिद मीर हुसैन कहते हैं हुकूमत तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे। जवाब जरूर दीजिएगा मुर्तजा साहब कि आप कह रहे हैं कि हम फैमिली के साथ नहीं, आप हमारे साथ नहीं खड़े हैं। आपको तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि जी फैमिली का जो डिमांड है JIT की वो हम JIT बना रहे हैं। आप क्यों नहीं JIT बना रहे हैं? उसमें क्यों आप रुकावट पैदा कर रहे हैं? आप मोहतरम जज के अंडर JIT बन सकती है। मीर हुसैन ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत सिंध मीर रजा कत्ल केस में अहले खाना को एतमाद में लेकर फैसले नहीं कर रही। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। नॉर्मल क्रिमिनल केसेस में JIT का तस्वुर नहीं, इसलिए जुडिशल कमीशन बनाया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मीर रजा के वालिदैन को एतमाद करना पड़ेगा। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन मीर रजा को इंसाफ दिलाने के लिए बनाया। कमीशन की रिपोर्ट आ जाए फिर आगे बढ़ेंगे। मुर्तजा वहाब ने यह भी कहा मीर रजा केस में अहले खाना के वकील जिब्रान नासिर ने 19 अगस्त को खत में कहा वजीर दाखिला, IG और पुलिस मुकम्मल नाकाम हो गए। वजीर आला ने इजलास में कहा हमें वकील को नहीं फैमिली को मुतमईन करना है। JIT का प्रोविजन वो एंटी टेररिज्म एक्ट में है। सिर्फ नॉर्मल जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसके अंदर JIT का कॉन्सेप्ट नहीं, ये उसकी एक वजह है। जुडिशल कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने मुस्तरद किया है। आखिर में इंसाफ अदालत से ही मिलना है। जिस अदालत से इंसाफ मिलना है वही अदालत अगर उसको इंक्वायर करके अपने फैक्ट देगी, इसमें क्या कबाहत है? किससे तहकीकात कराई जाए? उनके वकील साहब कह रहे हैं सूबे के IG ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, सूबे का वकील दाखिला वो नाकाम हो गया। अब अगर वो इसको रिजेक्ट करेंगे, कल को कोई और कमीशन बनाएंगे, कोई और आयोग, तो यही चीज़ चलती रहेगी। को ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर हुकूमत के दिल में कुछ ऐसी चीज़ होती, हम क्यों चाहते कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी हो? हम चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों को क्लियर किया जाए। आमिर फारूकी साहब को हटा दें, DIG सक्खर को इस काम के लिए लें, DIG वेस्ट से ये काम करवा लें, CTD वालों से, जिससे भी कराएंगे वो जवाब में यही कहेंगे। तो इसलिए क्योंकि जज की शख्सियत बाई पार्टीजन होती है, इम्पार्शियल होती है, इसलिए हमने ये फैसला किया। कराची में डाकू राज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की 3 बड़ी वारदातें। डिफेंस फेज 2 में डाकुओं ने शहरी से 40 लाख रुपए लूट लिए। सचल में मार्ट मालिक से 60 लाख रुपए छीन लिए गए। FB एरिया में मुसल्लह मुल्जिमान ने 5 चिकन शॉप्स को लूट लिया। वारदातों की CCTV फुटेजेस सामने आ गई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में डाकू बेलगाम, शहरियों का जीना हराम। कराची डिफेंस फेज 2 में डाकुओं ने शहरी से 40 लाख रुपए लूट लिए। शहरी बैंक से रकम लेकर निकला था कि 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान रकम छीन कर फरार हो गए। सचल थाने की हुदूद में मार्ट मालिक से 60 लाख रुपए छीन लिए। मुजाहिमत पर लुटेरों ने फायरिंग कर दी। जद में आकर एक राहगीर जख्मी हो गया। एरिया ब्लॉक 5 में भी डाकुओं ने 5 चिकन शॉप्स को निशाना बना डाला। 4 से 5 मुसल्लह मुल्जिमान एक के बाद एक चिकन शॉप में दाखिल हुए और लूट मार करते रहे। मुल्जिमान खुलेआम असलहा लहराते रहे और दुकानदारों से नकदी छीन कर फरार हो गए। साथ की CCTV वीडियो भी सामने आ गई, जिसमें मुल्जिमान के चेहरे वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वीडियो हासिल करके मुल्जिमान की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। हरीपुर में लापता बच्ची आयत नूर की लाश कुएं से मिल गई। पुलिस ने बताया लाश यूनिवर्सिटी रोड पर वेयर हाउस के कुएं से मिली। 14 रोज पहले 5 साल की बच्ची घर से बाहर खेलने के लिए निकली और लापता हो गई थी। पुलिस ने यह भी बताया मुबैना तौर पर ज्यादती और कत्ल के बाद बच्ची को कुएं में फेंका गया। पुलिस ने वाकये में मुलविस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा कर रखा है। दूसरी जानिब बच्चे की बाजियाबी के लिए सिद्दीक अकबर चौक में सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से जारी एहतजाज खत्म कर दिया गया। पुलिस हुक्काम ने यकीन दहानी कराई है वाकये में मुलविस अफराद को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कराची में ट्रैफिक हादसात में 12 साला बच्चे समेत 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। रवा बस ट्रैफिक हादसात में अमवात की तादाद 607 हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक स्टील टाउन मोड़ के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बच्चा जाँ बहक हुआ। मुतवफ़ी की उम्र 15 साल और शनाख्त उमर गुल के नाम से हुई।
हादसे के बाद ड्राइवर डंपर छोड़कर फरार हो गया। शालातीफ टाउन जोगी मोड़ स्टॉप के करीब एक और ट्रैफिक हादसा शहरी जान से गया। हादसा नामालूम गाड़ी की राहगीर को टक्कर के बायस पेश आया। रवाबल शहर कायद में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जांबाहक अफराद की तादाद 607 हो गई। जख्मियों की तादाद 7500 से तजावुज कर गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज के बायस बेशतर अहम शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मजीद बता रहे आसिफ खान अपनी इस रिपोर्ट में। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। गुरुमंदर, लसबेला, गुलीमार और तीनट्टी के करीब एहतजाज के बायस सड़कें बंद। हसन स्क्वायर और यूनिवर्सिटी रोड पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। सरशाह सुलेमान रोड से हसन स्क्वायर आने और जाने वाले दोनों ट्रैक एहतजाज के बायस बंद रहे। बड़ा बोर्ड वाला बंद किया, बड़ा बोर्ड के पुल से फिर वापसी आ रहा हूँ। पूरा रोड बंद है, गुरु मंदिर से गोलीमार तक, ये सारा रोड यहाँ से घूम के घाट से घूम के आ रहे हैं। गरीबाबाद में बिजली और पानी की अदम फरहमी के खिलाफ इलाका मकीनों के एहतजाज से इतराफ की शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। हमको जाना है यहाँ पे औरंगी टाउन जाना है, यहाँ से मिल ही नहीं सकता। 4 साढ़े 4 बजे यहीं पर ही है, तब से जाम है। यहाँ आते आते मैं इतना फंसते पे हूँ, 1 घंटा तो मुझे आने में लगा है। टू मार्केट से जाम जो मिला है वो अब तक यहाँ तक जाम है, यहीं अटका हुआ हूँ। मंगोपीर रोड लियारी एक्सप्रेसवे के करीब एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पाक कॉलोनी से बड़ा बोर्ड आने और जाने वाला रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गार्डन, निश्तर रोड और इतराफ की सड़कों पर भी ट्रैफिक जाम रहा। शहरियों ने मिनटों का सफर कई घंटों में तय किया। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज, कराची। आगे बढ़ते हैं। सोमालिया में बहरी जहाज को यरगमाल बनाए 120 दिन गुजर गए, लेकिन 10 पाकिस्तानियों समेत अमले की रिहाई मुमकिन न हो सकी। मदद की अपीलें करने वाले अहले खाना ने मायूस होकर इंतहाई इकदाम उठाने की धमकी दे दी। MKM पाकिस्तान ने यरगमाल पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में आवाज उठाते हुए तावान की रकम के लिए 22 अरकान असम्बली की जानिब से 22 करोड़ देने की ऑफर भी कर दी। राफे हुसैन की रिपोर्ट। 4 माह गुजर गए लेकिन रिहाई की कोई उम्मीद न बन सकी। सोमालिया के समंदर में कज़ाकों की जानिब से अगवा किए गए बहरी जहाज ऑनर 25 के हमले की उम्मीदें भी दम तोड़ने लगी। उसके साये में कैद प्यारों की हालत देखकर अहले खाना भी मायूस। कहा एहतजाज और अपीलों की कोई सुनवाई ना हुई। हुकूमत इस मसले को फौरी तौर पर हल कर ले। जो घर में बच्चों के हालात हैं वो ये हैं कि वो भूख हड़ताल पे बैठने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म साहब से कहते हैं कि फौरन वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले लें और इस मसले को हल करें। कोई मिनिस्टर का बच्चा फंस जाता है तो क्या आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं या एक्शन लेते हैं? मीटिंग्स हो रही हैं, फैमिली को एक्शन चाहिए। माल पाकिस्तानियों की रिहाई का मामला कौमी असम्बली और सेनेट में उठा दिया। अगर आपके बस की बात नहीं है तो हमें ये टास्क दे, हम ये काम कर लेंगे, हम उन्हें रिहा करा लेंगे। मैं अपने 22 MNAs की तरफ से हमारे जो डेवलपमेंट फंड है उसमें से 1-1 करोड़ रुपए यहाँ पर देने का ऐलान करता हूँ। जहाज पर मौजूद अमले की सेहत रोज बरोज खराब और सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। अहले खाना और अंसार बनी ट्रस्ट ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बराह रास्त कज़ाकों से मुज़ाकरात करके पाकिस्तानियों की रिहाई को मुमकिन बनाया जाए। राफे हुसैन, ARY न्यूज। आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां उरूज पर हैं। मुख्तलिफ शहरों में मस्जिदों, इमारतों और घरों को खूबसूरत लाइटों से सजा दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। कराची में हमारे साथ हैं चांद नवाब और लाहौर से हमारे साथ होंगे ख्वाजा रमजान मजीद। चांद नवाब, पहले आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा कराची को किस तरह से सजाया गया है, क्या तैयारियां देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये ओल्ड सिटी एरिया का इलाका है, छांगला गली, जो क़याम पाकिस्तान के बाद से जश्न ईद मिलादुन्नबी के लिए सजाई जाती है। बड़की कुमकुमों से सजाई गई है, नालन मुबारक लगाए गए हैं और यहाँ पे बुजुर्ग हों, बच्चे हों, बड़े हों, ख़वातीन हों, तमाम लोग जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियाँ कर रहे हैं। जोश खरोश से गए रात हो गई है लेकिन चेहरों पे रौनक है, हर तरफ से सदाएं बुलंद हो रही हैं। सरकार की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा, ईद मिलादुन्नबी क्यों न मनाएं, सरकार की आमद है। बच्चे हों, बड़े हों, हर किसी के चेहरे पे रौनक है। ईद का समय है। ओल्ड सिटी एरिया की छांगला गली में दूर दराज इलाकों के शहर से लोग यहाँ जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी की रौनक और चरागा देखने के लिए आए हुए हैं और उनका यही कहना है कि ईद मिलादुन्नबी जोश और खरोश के साथ मनाएंगे क्योंकि सरकार की आमद है। जी ठीक है, चांद नवाब कराची से आगाह कर रहे थे। लाहौर का रुख कर लेते हैं। ख्वाजा रमजान मजीद हमारे साथ मौजूद है। रमजान, बताइएगा
लाहौर में हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कई रोज़ से सजावट का सिलसिले का आगाज़ हो गया है, कहाँ पर मौजूद हैं और कैसी तैयारियां देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर लाहौर को भी एक दिलकश और मुनफरद अंदाज से सजाया गया है। मैं इस वक्त लिबर्टी चौक पर मौजूद हूँ और लिबर्टी चौक पर जो है वो इंतहाई खूबसूरत अंदाज से जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से जो है वो लाइटिंग की गई है और बड़े मुनफरद अंदाज के अंदर पूरे लिबर्टी गोल चक्कर को सजाया गया है। न सिर्फ लिबर्टी गोल चक्कर बल्कि शहर की दीगर इमारतें जो बुलंद इमारतें हैं और अहम शाहराएँ हैं उनको एक खूबसूरत अंदाज के अंदर सजाया गया है। इस तरह से जो आशिकाने रसूल हैं उन्होंने अपने गली मोहल्लों को अपने ताई बच्चों ने मिलकर खूबसूरत अंदाज से सजाया है। झंडियाँ लगाई गई हैं और अपने अपने इलाके में अपने अपने गली मोहल्ले के अंदर भी जो महफिल का इनेकाद किया गया है वहाँ पर नात ख्वानी की जा रही है और जश्न मनाने के हवाले से भरपूर तरीके से तैयारियाँ की जा रही हैं। लाहौर में जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से जो है वो शहरी बड़े पुरजोश हैं और इस दिन को मनाने का वो बड़ी बेताबी से और बड़े पुरजोश अंदाज से तैयारियां कर रहे हैं। जी ख्वाजा रमज़ान मजीद लाहौर से और हमारे नुमाइंदे कराची से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुशीर व राना सनाउल्लाह कहते हैं पीपी बिलाशुबा बड़ी जमात है, सिंध इसका बेस है, नून लीग की मुखालिफ है। हमने इनके खिलाफ, इन्होंने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा, लेकिन सच्ची बात है पीपी हमारे साथ गेम नहीं कर रही। कुछ लोग प्याली में तूफान लाने की बातें कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीपी की कमेटी से 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, मंगल को एक और होगी, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है और सिंध उसका बेस है। ये भी बड़ी वाज़ेह बात है कि PMLN की मुखालिफ जमात है। हमने उनके खिलाफ, उन्होंने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। लेकिन सच्ची बात ये है पीपल्स पार्टी कोई गेम नहीं कर रही, कोशिश कर रहे हैं चाय की प्याली में तूफान लाने की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया है जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे हम अदम तआवन करेंगे। असेंबली में या सेनेट में कोरम या जो रूटीन की लेजिस्लेशन उसमें आपके साथ तआवन नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन होगी उसमें तआवन करेंगे। और वो उन्होंने इस ऐलान के दूसरे दिन किया भी है। क्यों उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करेंगे? हम उनको एंगेज करेंगे। जो उन्होंने टीम बनाई है उस टीम के साथ हमारी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, एक इंशाअल्लाह ताला कल होगी। मामला फहम लोग हैं, उनके साथ हम बैठ के इंशाअल्लाह ताला उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। गरीब आवाम से लेवी के नाम पर 80 रुपये भत्ता लिया जा रहा है। शायद ये लेवी हुक्मरानों को बहा ले जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। कहा आप 11 अरब रुपए का जहाज खरीद रहे हैं, मुफ्त पेट्रोल से बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। क्या मुल्क में बिजली और गैस की लोड शेडिंग खत्म हो गई? लेवी भत्ते के नाम पर तमाशा हो रहा है, ये नाजायज है। गरीबों से जो ज़कात के मुस्तहिक हैं उन सब लोगों से हर लीटर पर हुकूमत भत्ता लेती है, जग्गा टैक्स लेती है। 80 रुपए से जायद का लेवी का भत्ता है। तुम लेवी खत्म नहीं करोगे, शायद अपनी हुकूमत ही खत्म कर लोगे। ये लेवी तुम्हें बहा कर ले जाएगी। इसको सीरियस लो। गरीब मर रहे हैं, हमारी जेबों पे डाका डालकर 1100 करोड़ रुपए का जहाज खरीद रही है आप। ये क्या तमाशा है? और करोड़ रुपए की गाड़ियां चलाते हो, उनका फ्री पेट्रोल डलवाते हो। सरकार की गाड़ी 1300 सीसी में बैठ जाओगे, मर नहीं जाओगे। शहबाज शरीफ हो या मरियम नवाज हो, 1300 सीसी में क्यों नहीं बैठ सकते? कौन से कहते हो कुर्बानी दो, कौन के ऊपर लेवी टैक्स लगाते हो, कौन के ऊपर बिजली के बिल में फिक्स चार्ज लगाते हो और नवाजते हो एक माफिया को। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।